CET, CMAT, NMAT, SNAP, ZAT, TIS, जो मर्जी एग्जाम का नाम ले लो, उस पर रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. इट कम्स अंडर वर्बल रीजनिंग एंड स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंफ्यूज इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इन फैक्ट there are sessions where people are arguing कि ये आंसर क्यों है, वैसा क्यों है. Like always, at Vision MBA, in this video, I am going to give you just one approach, one ideology, one understanding that will help you to get the answers every time right. It doesn't matter in which examination these type of questions are asked. So guys, let's get started and understand what is reasoning. Of course, you guys know what is reasoning, but what is inference based questions? Now, in many examinations like CAT, CET, CMAT, SNAP, and MAT, in all the examinations, you're going to get questions like these. However, in examinations like CAT, the inference based questions are a part of RC, but in other examinations like CET, CMAT, SNAP, it comes under reasoning sectional. LR, जिसको आप लोग LR भी कहते हैं. Guys, remember one thing as I always say, the LR section is going to be not slightly but a lot tilted towards verbal. So let's understand what is inference-based question and how to answer these questions. I am just going to give you one way to understand these questions. Now, guys, let's understand what is the difference between inference versus conclusion, or what is the difference in an inference based question or an conclusion based question. Now, guys, the answer is very simple. अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो यार दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है. बट वॉट इज इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस इज बेसिकली नथिंग बट what you came on to a conclusion after understanding everything, and of course that is what conclusion is. Now if an examiner is asking you what is the conclusion or what is the inference, more or less the answer is same, more or less the question is similar. There is only one difference, and that I'll tell you. But before I go on to that, I want to tell you that please do not get confused. If you see inference or conclusion is basically general understanding. So before further ado, let's proceed further. Now they are almost similar but with one difference. जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों almost similar है, but एक ही difference है. और वो difference क्या है? Let's understand that. Inference is never directly or explicitly mentioned in the passage or in a line. मतलब जो इन्फ्रेंस दिया होगा, जो समझ में निकालना होगा, उसका जो निचोड़ होगा वो डायरेक्टली मेंशन नहीं होगा. ऑफ कोर्स कंक्लूजन भी डायरेक्टली मेंशन नहीं होता, बट कंक्लूजन के लिए आपको थोड़े क्लूज मिल जाते हैं. इन्फ्रेंस का मतलब होता है आपको पढ़ के समझना है. सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट इज. नाउ ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज थिंग्स. We will be attempting questions to understand what exactly it is. Now let's get this question or the statement. Look at this statement. Sachin is the best batsman India has ever produced. मुझे पता है क्रिकेट लवर्स अचानक से चीखने लग जाएंगे, अरे ऐसा कैसे, विराट कोहली अच्छा है, अरे ऐसा कैसे, कपिल देव है, और भी बहुत सारे बैट्समैन हैं. गाइस अंडरस्टैंड, ये मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस क्यों लिया हुआ है कि जब भी एग्जाम में आपको इन्फ्रेंस बेस्ड या कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको अपनी पर्सनल थिंकिंग साइड में रखनी है. आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समझ है, वो गई तेल लगाने के लिए. मिर्जापुर के बाबूजी जैसे तेल लगाते हैं ना, जोक्स अपार्ट. नाउ यू जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड दैट क्या मेंशन है एग्जाम में, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड. इसका मतलब सचिन बेस्ट है. उसके नीचे एक कंक्लूजन रहेगा या तो एक इन्फ्रेंस रहेगा. सचिन इज अ बेटर बैट्समैन देन रोहित शर्मा. Rohit Sharma is a better batsman than Virat Kohli and better than Sachin. Virat Kohli is better batsman than Sachin, whatever. Now the question is given that Sachin is the best batsman India has ever produced. तो वो वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये बताया होगा कि सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन एज कंपेयर टू Virat Kohli and Rohit Sharma. But that is the inference, that is the understanding. Infer means you understand, you understood what is mentioned, you read in between the lines. It is not directly mentioned, but you read and you come on to a conclusion or an understanding. That is what inference is. If you're still getting confused, do not worry. Let's proceed further. Now, verbal reasoning question judge your language and comprehension skills. Of course, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई वर्बल रीजनिंग या रीजनिंग क्या जज करता है, ताकि उस तरीके से मेरी अप्रोच हो, मुझे वो क्वेश्चन समझ में आए. वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन
does nothing but it judges, as it clearly mentioned, language. क्या इंग्लिश पढ़ने के बाद समझ में आती है? और कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि अंग्रेजी कितनी आती है और कितनी समझ आती है, ये चीज आपकी रीजनिंग जज करता है अलग अलग तरीके से. सो लेट्स गो फर्दर. Let's understand with examples, of course, that's what I'm going to do. But before I go on to the example, I want to tell you that what is the mistake usually students do. And there is only one mistake, guys. While answering inference based questions, challenge is that usually students do over infer or read too much in between line. मतलब वो कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही assume कर लेते हैं, ज़्यादा ही conclude कर लेते हैं. उतना ही करो जितना ज़रूरत है, as compared to, or not compared to, I'll say, as keeping in mind what is mentioned in those lines or in a passage. वो दिक्कत होती है, स्टूडेंट क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही सोच लेता है. So before I proceed further, let me go with a question here. Now guys, this question looks like this. I have taken this question from official NMAT book. And why? Because NMAT is an examination where the quality of questions are quite good, and if you can understand these questions easily, you can attempt these kind of questions not only in NMAT but in SNAP, CT, CMAT, or any exam wherever these kind of questions come. Now, here is how the answer choices typically look like. अब एक सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली अप्रोच तो ये कि पहला ऐसा कुछ लिखा रहेगा, वन इन्फर, बी लिखो तो बी, टू है तो बी लिखो, सी है तो उनमें से कोई एक है, डी है तो कोई भी नहीं, ई है तो दोनों, और स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. Whenever you get these kind of options in any reasoning question, do not worry about these options. In fact, try to get the answer by doing one thing, and that one thing I'm going to show it to you now. And do it how? For example, statement given है, jogging is good for the health. It's a very simple statement, and jogging is good for health. I will not worry about what the inferences are. I will check inference one. Walking is not good for health. ऑल हेल्दी पीपल जॉग. अब मुझे बताओ कि इससे इन्फर क्या होता है. जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये देखने में और सुनने और समझने में बहुत इजी लगता है. मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस रिकॉर्डिंग को पॉज करें और पता करने की कोशिश करें कि आंसर क्या होगा. कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? ट्राई गाइस, ट्राई. समझ में आ रहा है? ट्राई करो गाइस. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. स्टेटमेंट इज जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, ऑल हेल्दी पीपल जॉग. इससे इन्फर क्या होता है? जॉगिंग इज गुड फॉर द हेल्थ. इससे क्या ये इन्फर होता है क्या वॉकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? क्या इससे ये प्रूव होता है? ऑफ कोर्स ये प्रूव नहीं होता. कहीं लिखा हुआ है क्या, कहीं मेंशन्ड है क्या कि वॉक करने से लोग हेल्दी नहीं होते, सिर्फ जॉग करने से ही होते हैं? एक सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ है, जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ. इन्फ्रेंस वन, इन्फ्रेंस है वॉकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो भाई ये इन्फ्रेंस नहीं होता, इससे ये इन्फ्रेंस नहीं निकलता, इससे हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि भाई वॉकिंग करने क्या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इससे कोई जॉगिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है. तो जो इन्फ्रेंस वन है वो मेरा क्रॉस हो जाएगा, मैं उसके आगे क्रॉस लगा दूंगा. सेकेंड इन्फ्रेंस, ऑल हेल्दी पीपल जॉग. यार ये भी मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में, ये भी इन्फर नहीं होता, ये भी कंक्लूड या समझ में नहीं आता कि भाई ऑल हेल्दी पीपल जॉग. जरूरी नहीं है कि जितने भी हेल्दी पीपल है वो जॉग ही करते हैं. एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जॉगिंग इज गुड फॉर द हेल्थ. अब यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट और एग्जाम्पल क्यों लिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तुम सब लोगों ने, जिन लोगों ने गलत आंसर चूज किया होगा, ऑफकोर्स आई गिव यू दी आंसर, उन लोगों ने एक ही गलती होगी कि होगी ज्यादा सोच लिया होगा. ये भी मेंशन नहीं है तो ये भी नहीं है इन्फर इसका, दोनों इन्फर नहीं है. आई पुट टू क्रॉसेस. अब मैं जाऊंगा अपने ऑप्शंस की तरफ, मैं देखूंगा कि बोथ, हाँ, नीदर नॉर, वन टू, ओके, डी ऑप्शन. मैं डी लिखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा. अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों? भाई क्या स्टेटमेंट में मेंशन है कि सिर्फ हेल्दी पीपल ही जॉब करते हैं? क्या स्टेटमेंट में कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि वॉकिंग इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ? I hope you guys are getting what I'm trying to explain here. Let's move on. Let's go on to the next question. You can even get questions with more than two inferences associated with them. Let us take a look at an example. I hope you guys, if you want, you can pause the video anytime and you can go through it. Most shoes available at the Broadway store are expensive. एक स्टेटमेंट है कि भाई ब्रॉडवे स्टोर कोई स्टोर होगा, वहां पे जितने भी ज्यादातर जूते हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं. Inference 1. There are no cheap shoes available at the Broadway store. The Broadway store is overcharging its customers. Some of the shoes available at the Broadway store are not expensive.
पीपल शुड अवॉइड बाइंग शूज फ्रॉम द ब्रॉडवे स्टोर। अब मुझे बताओ कि इसका, अब डू नॉट वरी अबाउट दीज इन्फ्रेंसेज, एज आई सेड डू नॉट गो फॉर दीज ऑप्शंस। आई मीन टू से ऑफ कोर्स यू विल वरी अबाउट द इन्फ्रेंसेस, बट ये ऑप्शंस को तुम टेंशन नहीं लोगे। अब बस इतना पढ़ के ये मत करो कि भाई इससे ये इन्फर होता है क्या, समझ में आता है क्या, ये समझाता है, इन्फर मतलब समझ में आ रहा है क्या, समझाता है, ये आता है। तो जो राइट होगा उसके आगे आप राइट डालोगे, नहीं होगा तो क्रॉस आएगा, फिर उसके बाद आप ऑप्शंस देखोगे। ट्राई टू डू इट गाइस। Pause the video, try to do it. आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा, आप गए होगे। अब हम पढ़ते हैं, अब मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ। देर आर नो चीप शूज अवेलेबल एट द ब्रॉडवे स्टोर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट शूज। मोस्ट का मतलब ये नहीं होता कि ऑल द शूज, ज्यादातर और हर कोई, फर्क है ना। सो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। इससे ये तो नहीं है कि भाई चीप नहीं है, क्या पता एक आधा जोड़ा वहां पे, एक आधा डिजाइन सस्ता भी हो, ऑफ कोर्स। सेकंड क्या है, द ब्रॉडवे स्टोर इज ओवर चार्जिंग इज कस्टमर। ये कहां पे लिखा हुआ है भाई, स्टेटमेंट में कही है तुम ज्यादा सोच रहे हो। याद है मैंने जो गलती बताई, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तो सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड क्या है, सम ऑफ द शूज अवेलेबल एट द ब्रॉडवे स्टोर आर नॉट एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स हो सकता है, ये बैठता है, सम मोस्ट लिखा हुआ है तो यानी कुछ तो होगा जो ज्यादा नॉट एक्सपेंसिव नहीं होगा, तो ये थ्री मेरा बैठता है। पीपल शुड अवॉइड बाइंग शूज, ये भी बिल्कुल नहीं है, ये तो ये भी बिल्कुल इन्फर नहीं होता। तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस में सी लिखा हुआ है, ओनली थ्री इन्फर, ये मैं लिख दूंगा, इसका आंसर सी है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, इफ नॉट डू नॉट वरी। लेट्स गो टू वन मोर एग्जाम्पल। नाउ गाइज व्हाइल आंसरिंग inference questions, okay, my bad, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, डी हो गया, इंडरेंस हो गया, my bad. Inference questions avoid selecting extreme or strongly word options, worded options, okay, यहाँ पे भी यार टाइपिंग एरर हो गया है। worded options मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, while answering inference based questions avoid selecting, अगर ऐसा कोई ऑप्शन कहता है definitely this is the answer, this is the, this is why, that is the, मतलब एकदम पिन पॉइंट कहता है, तो वो नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, अगर अब तक इन्फ्रेंस समझ में आ रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखना, ओवर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ओवर सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी। मूविंग ऑन, let's try to solve this question. I want you guys to pause this presentation, read the statement and conclusion and solve it the way I did it. Do not worry about these options. Select whether conclusion 1 follows or not, conclusion 2 follows or not. As I said, it can be a conclusion based question or inference also. दोनों चीजें almost similar है। अगर समझ में आ गया तो आ गया। Try to do it guys. I hope you must have paused the video, you must have gone through it. Let's try to do it together. From next year, students opting for the science stream will be allowed to drop physics and chemistry from their core subjects. भाई अगले साल से जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें ऑप्शन मिलेगा, या will be allowed to drop physics and chemistry from their core subject. अगर उनको चाहिए तो या फिजिक्स या केमिस्ट्री, वो दोनों वो सब्जेक्ट साइंस की स्ट्रीम से ड्रॉप कर सकते हैं। अगले साल से साइंस के स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस मिलेगा। कई सारे साइंस के स्टूडेंट जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बीएससी के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग जिन्होंने 12th तक साइंस पढ़ी हुई है वो समझ रहे होंगे। अब कंक्लूजन 1 क्या है। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे, सर मैं कॉमर्स का हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भाई तुम कॉमर्स के हो लेकिन सिचुएशन तो समझते हो ना। कॉमर्स के लिए तुम्हें कुछ सब्जेक्ट्स लेने पड़े होंगे, आर्ट्स के लिए, तो पागल मत बनना। लुक एट द कंक्लूजन, स्टूडेंट्स हु वर अवॉइडिंग द साइंस स्ट्रीम ड्यू टू देयर वीकनेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैन नाउ स्टडी इन साइंस स्ट्रीम। ओके, क्या ये कंक्लूजन होता है? डज इट? यस। जिनका कमज़ोर है वो चाहेंगे ना कि यार मैं ना लूँ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे साइंस करना है बट मेरा मैथ्स वीक है, ठीक है कोई बात नहीं। अब साइंस में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मैथ्स नहीं लूंगा तो मैं फिर भी साइंस कर लूंगा। पहले मैं साइंस करने से क्यों डर रहा था? क्योंकि मैथ्स था। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट। सो डेफिनेटली कंक्लूजन 1 इज देयर। Conclusion 2. Previously, students opting for the science stream had to compulsory study both physics and chemistry. Yes, ये भी है। Previously पहले ऑप्शन नहीं था, अब है, तो दोनों फॉलो करते हैं। कोई ऑप्शन है both 1 and 2? Yes, this is the option. Answer is E. I hope guys this small presentation and my effort for you guys to understand what it is and how I teach, how we teach at Vision MBA had made sense to you. If you want, you can go through this recording again, you can pause it
and you can also mention your comments, your answers, your reasons in the comment section box. Now, for any MBA entrance related query, please contact 9769839623. That is my number. 9892485557. That is with my colleague. So if you guys want to discuss anything in regards to any MBA entrance examination, CET, CAT, CMAT, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, विजन MBA से पढ़ना है, jokes apart, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, you guys can always get in touch with me. Thank you. I hope you must have enjoyed and understood what I have taught today. Have a great day, guys.